ایک بچہ جسے اپنے ہی بھائیوں نے حسد کی وجہ سے گہرے کنویں میں چھوڑ دیا۔ ایک ایسا بچہ جس نے اپنوں کی جدائی دیکھی، غلامی کا سفر دیکھا، جھوٹے الزام برداشت کیے اور سالوں تک قید کی سختیاں برداشت کیں، لیکن اللہ کی حکمت ایسی تھی کہ جسے لوگوں نے تنہا چھوڑ دیا تھا، اللہ نے اسی کو ایک دن عزت، مقام اور اقتدار عطا فرما دیا۔ یہ کہانی ہے اللہ کے نبی حضرت یوسف علیہ السلام کی، ایک ایسی داستان جس میں صبر ہے، آزمائش ہے، معافی ہے اور اللہ کی مدد کا ایسا وعدہ ہے جو ہر مشکل وقت میں انسان کو امید دیتا ہے۔ ایک عظیم آزمائش اور صبر کی داستان۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم قرآن کریم میں بیان ہونے والے ایک ایسے عظیم واقعے کی داستان سنیں گے جو صبر، آزمائش، معافی اور اللہ کی حکمت کی سب سے خوبصورت مثالوں میں سے ایک ہے۔ یہ کہانی ہے اللہ کے نبی حضرت یوسف علیہ السلام کی، ایک ایسی زندگی کی کہانی جس میں بچپن کی خوشیاں بھی تھیں، جدائی کا درد بھی، آزمائشیں بھی، قید بھی اور آخرکار اللہ کی طرف سے عزت اور کامیابی بھی۔ یہ وہ قصہ ہے جسے قرآن کریم نے احسن القصص یعنی بہترین قصوں میں سے ایک قرار دیا۔ ناظرین، حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کے نبی حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام خود بھی اللہ کے برگزیدہ نبی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بچپن ہی سے خاص صلاحیتیں عطا فرمائی تھیں۔ آپ علیہ السلام خوبصورت اخلاق، پاکیزہ کردار اور خاص سمجھ بوجھ رکھنے والے تھے۔ ایک دن حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام سے خواب بیان کیا۔ انہوں نے کہا، اے میرے والد، میں نے خواب میں 11 ستارے، سورج اور چاند دیکھے۔ میں نے دیکھا کہ وہ سب مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ ایک خاص خواب ہے۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی کہ یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ بتانا، کیونکہ انہیں اندیشہ تھا کہ کہیں حسد پیدا نہ ہو جائے، کیونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام جانتے تھے کہ خواب کے پیچھے اللہ کی کوئی بڑی حکمت ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے کئی بھائی تھے۔ ان میں سے کچھ کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ والد حضرت یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ حسد آہستہ آہستہ دل میں بڑھنے لگا۔ انہوں نے سوچنا شروع کیا کہ یوسف کو ہم سے دور کر دینا چاہیے تاکہ والد کی توجہ ہماری طرف ہو جائے۔ پھر ایک دن انہوں نے ایک منصوبہ بنایا۔ انہوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہا کہ یوسف کو ہمارے ساتھ بھیج دیں تاکہ وہ ہمارے ساتھ کھیلیں اور گھومیں۔ لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام کے دل میں ایک خوف تھا۔ انہیں اندیشہ تھا کہ یوسف علیہ السلام کے ساتھ کوئی نقصان نہ ہو جائے، لیکن بھائیوں نے اصرار کیا۔ آخرکار حضرت یوسف علیہ السلام ان کے ساتھ چلے گئے، اور پھر وہ لمحہ آیا جس نے اس معصوم بچے کی زندگی کا رخ بدل دیا۔ بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک گہرے کنویں میں ڈال دیا۔ وہ وقت حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے بہت سخت تھا۔ ایک طرف گھر سے جدائی، دوسری طرف اپنے ہی بھائیوں کی طرف سے دھوکا۔ لیکن اللہ اپنے بندوں کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے دل کو سکون دیا۔ یہی وہ مقام تھا جہاں سے ایک عظیم سفر شروع ہوا، ایک ایسا سفر جس میں آزمائشیں بھی آئیں گی، لیکن اللہ کی مدد بھی ساتھ ہوگی۔ کنویں سے مصر تک کا سفر اور نئی آزمائشیں۔ ایک معصوم بچہ اپنے گھر سے دور، اپنے خاندان سے جدا، اور ایک ایسی جگہ جہاں بظاہر کوئی مدد نظر نہیں آ رہی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ کی مدد ہمیشہ اپنے بندوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کنویں میں تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کو تسلی دی اور انہیں بتایا کہ ایک وقت آئے گا جب یہی واقعہ انہیں یاد دلایا جائے گا۔ یہ اللہ کی حکمت تھی کہ جس آزمائش کو انسان مصیبت سمجھتا ہے، کبھی کبھی وہی آزمائش مستقبل کی کامیابی کا راستہ بن جاتی ہے۔ کچھ وقت بعد ایک قافلہ وہاں سے گزرا۔ قافلے والوں نے پانی کے لیے کنویں پر اپنا آدمی بھیجا۔ جب اس نے پانی نکالنے کے لیے ڈول ڈالا تو اسے حیرت ہوئی کہ اس میں پانی کے بجائے ایک بچہ موجود ہے۔ انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا اور حیران رہ گئے۔ انہوں نے سوچا کہ یہ بچہ کہاں سے آیا۔
लेकिन उन्होंने उसे अपने साथ ले जाने का फैसला किया। काफिला हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को लेकर मिस्र पहुंचा। इस जमाने में गुलामों की खरीदो फरोख्त का निज़ाम मौजूद था। काफिले वालों ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को फरोख्त कर दिया और उन्हें मिस्र के एक बड़े ओहदे वाले शख्स ने खरीद लिया, जिसे कुरान में अजीज़ मिस्र कहा गया है। अजीज़ मिस्र ने जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखा तो उनके अंदर की खूबियों को महसूस किया। उन्होंने अपनी बीवी से कहा कि इस बच्चे को इज्जत के साथ रखो, मुमकिन है यह हमारे लिए फ़ायदेमंद साबित हो या हम उसे अपना बेटा बना लें। यूं हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम एक नए घर में पहुंचे, लेकिन यह भी अल्लाह की तरफ से एक इम्तिहान था। नाजरीन, वक्त गुजरता गया। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जवान हुए। अल्लाह ताला ने उन्हें खूबसूरती, इल्म और समझ अता फरमाई। लेकिन अल्लाह के नेक बंदों की जिंदगी में आजमाइशें भी आती है। अजीज़ मिस्र के घर में रहते हुए एक और बड़ा इम्तिहान आया। अजीज़ मिस्र की बीवी ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को गलत रास्ते की तरफ बुलाने की कोशिश की, लेकिन हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम अल्लाह से डरने वाले थे। उन्होंने गुनाह से बचने की कोशिश की और अल्लाह की पनाह मांगी। उन्होंने कहा कि अल्लाह ने मुझे इज्जत दी है, मैं खयानत नहीं कर सकता। ये एक बहुत सख्त लम्हा था। एक तरफ एक मौके था, दूसरी तरफ अल्लाह का खौफ था। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने दुनियावी फायदे के बजाय अल्लाह की रजा को तरजीह दी। जब वो आजमाइश नाकाम हुई तो मामला उल्टा हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के खिलाफ करने की कोशिश की गई। घर के हालात बदल गए, लोगों में बातें होने लगीं और आखिरकार हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के लिए एक नई आजमाइश का दरवाज़ा खुल गया। ये आजमाइश उन्हें एक ऐसी जगह ले जाने वाली थी जहां ज़ाहिरी तौर पर आज़ादी ख़त्म हो जाएगी, लेकिन हकीकत में वही जगह उनकी अज़मत और मुस्तकबिल की कामयाबी का रास्ता बनने वाली थी। दुनिया की नज़र में यह एक मुश्किल वक्त था, लेकिन अल्लाह ताला के मंसूबे में यही मरहला हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के लिए इज़्ज़त और कामयाबी का रास्ता बनने वाला था। नाजरीन, जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम पर इल्ज़ाम लगाने की कोशिश की गई और हालात उनके खिलाफ हो गए तो उन्हें कैद खाने भेज दिया गया। सोचिए, एक शख्स जिसने पाकीज़गी इख्तियार की, गुनाह से बचने की कोशिश की, लेकिन फिर भी उसे आजमाइश का सामना करना पड़ा। यह अल्लाह के नेक बंदों की जिंदगी का एक सबक है कि कभी कभी हक पर कायम रहने के बावजूद इंसान को मुश्किल हालात से गुजरना पड़ता है। लेकिन हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कैद खाने में भी सब्र का दामन नहीं छोड़ा। वो मायूस नहीं हुए। उन्होंने जाना कि अल्लाह हर हाल में साथ है। कैद खाना भी उनके लिए दावत, भलाई और नेकी का मकाम बन गया। वो वहां मौजूद लोगों के साथ अच्छा बर्ताव करते और उन्हें अल्लाह की तरफ बुलाते थे। इसी कैद खाने में दो और लोग भी मौजूद थे। उन्होंने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के अखलाक और समझबूझ को देखा। एक दिन दोनों ने ख्वाब देखे और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास आए ताकि उन ख्वाबों की ताबीर मालूम करें। एक ने कहा, मैंने ख्वाब में देखा कि मैं शराब नचोड़ रहा हूं। दूसरे ने कहा, मैंने देखा कि मेरे सर पर रोटियां हैं और परिंदे उन्हें खा रहे हैं। उन्होंने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से ताबीर पूछी। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने पहले उन्हें अल्लाह की तरफ बुलाया। उन्होंने उन्हें समझाया कि असल इल्म अल्लाह के पास है। फिर उन्होंने इन ख्वाबों की ताबीर बताई। एक के बारे में फरमाया कि वो दोबारा बादशाह के काम में वापस जाएगा और दूसरे के बारे में बताया कि उसके साथ दूसरी सूरत पेश आएगी। वक्त गुजरा और ख्वाब की ताबीर वैसे ही पूरी हुई। जिस शख्स के बारे में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा था कि वो वापस बादशाह के पास जाएगा, वो रहा होकर दोबारा बादशाह के दरबार में पहुंच गया। कुछ अरसा बाद बादशाह ने एक अजीब ख्वाब देखा। उसने 7 मोटी गायें हैं जिन्हें 7 दुबली गायें खा रही हैं और 7 हरी बालियां हैं और 7 खुश्क बालियां हैं। बादशाह परेशान हो गया। उसने अपने दरबारियों से ताबीर पूछी, लेकिन कोई सही जवाब न दे सका। तब उस शख्स को हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम याद आए जो कभी कैद खाने में थे। वो बादशाह के पास गया और कहा कि एक शख्स है जो ख्वाबों की सही ताबीर बता सकता है। यही वो लम्हा था जिसका इंतजार था। जिस शख्स को लोग कैद में भूल चुके थे, अल्लाह ताला ने उसके इल्म और सलाहियत को दुनिया के सामने जाहिर करने का वक्त मुकर्रर कर दिया था। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बादशाह के ख्वाब की ताबीर बताई। उन्होंने बताया कि पहले 7 साल खुशहाली के होंगे, फिर 7 साल सख्त कहत आएगा। और उन्होंने सिर्फ ताबीर ही नहीं बताई,
बल्कि उस मुश्किल वक्त से निमटने की हिकमत अमली भी बताई। बादशाह हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की अक्ल, इल्म और किरदार से बहुत मुतासिर हुआ। अब वो वक्त करीब था जब कैद की दीवारों से निकलकर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम इज्जत और मकाम की तरफ बढ़ने वाले थे। वही यूसुफ अलैहिस्सलाम जिन्हें बचपन में अपने भाइयों ने कुएं में छोड़ दिया था, जिन्हें गुलाम बनाकर मिस्र लाया गया, जिन्होंने झूठे इल्जाम का सामना किया और कैद खाने की सख्ती बर्दाश्त की। अब अल्लाह ताला उन्हें एक अजीम मकाम अता फरमाने वाला था। जब बादशाह ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की बात सुनी और उनके इल्म व हिकमत से मुतासिर हुआ तो उसने उन्हें अपने पास बुलाने का हुक्म दिया। लेकिन हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फ़ौरन बाहर आने के बजाय पहले अपने ऊपर लगे इल्ज़ाम की हकीकत वाज़े करवाना चाहिए। वो चाहते थे कि दुनिया जान ले कि उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया। ये हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के किरदार की पाकीज़गी थी। जब हकीकत सामने आई तो लोगों ने गवाही दी कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम बेकसूर थे। तब बादशाह ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को इज्जत के साथ अपने पास बुलाया। बादशाह ने उनकी काबिलियत और समझबूझ को पहचान लिया। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने मुल्क के हालात को देखते हुए जिम्मेदारी कबूल की। उन्होंने कहा कि उन्हें ज़मीन के ख़जानों पर मुकर्रर किया जाए, क्योंकि वो हिफाजत करने वाले और इल्म रखने वाले हैं। अल्लाह ताला ने उन्हें मिस्र में एक बड़ा मकाम अता फरमाया। अब वो वक्त आ गया था जिसका फैसला अल्लाह ने पहले ही कर रखा था। कहत का ज़माना शुरू हुआ। लोग दूर दूर से अनाज लेने मिस्र आने लगे। इसी दौरान हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई भी मिस्र पहुंचे। उन्हें मालूम नहीं था कि जिस शख्स के सामने वो मदद लेने आए हैं वही उनका भाई यूसुफ है। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों को पहचान लिया, लेकिन उन्होंने फ़ौरन अपनी शनाख्त जाहिर नहीं की। उन्होंने हालात को हिकमत के साथ देखा। वो जानना चाहते थे कि वक्त गुजरने के बाद उनके भाइयों के दिलों में क्या तब्दीली आई है। भाइयों ने बताया कि उनका एक भाई यूसुफ था जो बहुत पहले गुम हो गया था। ये सुनकर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के दिल में बचपन की यादें ताज़ा हुईं। वो कुआं, वो जुदाई, वो आजमाइशें, सब कुछ याद आ गया। लेकिन हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बदला लेने के बजाय सब्र और हिकमत का रास्ता इख्तियार किया। उन्होंने अपने भाइयों से कहा कि अगली बार अपने छोटे भाई को भी साथ लेकर आना। भाई वापस चले गए, लेकिन उन्हें मालूम नहीं था कि अल्लाह ताला एक अजीम मुलाकात का वक्त करीब ला रहा है। ये कहानी हमें बताती है कि अल्लाह जब किसी को आजमाता है तो उसके साथ अपनी रहमत के रास्ते भी खोल देता है। जो शख्स सब्र करता है, अल्लाह उसे ऐसे मकाम तक पहुंचा देता है जिसका वो तसव्वुर भी नहीं कर सकता। भाइयों की पहचान, माफ़ी। किस्सा यूसुफ अलैहिस्सलाम के आखिरी हिस्से में हम इस मकाम पर पहुंचते हैं जहां बरसों की जुदाई ख़त्म होने वाली थी, आंसू खुशियों में बदलने वाले थे और सब्र का बदला अल्लाह ताला अपनी शान के मुताबिक देने वाला था। ये वो मरला था जहां हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की पूरी ज़िंदगी की आजमाइशों का मकसद ज़ाहिर होने लगा। नाज़रीन, जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई दोबारा मिस्र आए तो उनके साथ उनका छोटा भाई भी मौजूद था। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जब अपने भाई को देखा तो उनके दिल में मोहब्बत और बचपन की यादें ताज़ा हो गईं। उन्होंने अपने भाई को अपने करीब किया और अपनी हकीकत बता दी। अब एक ऐसा राज सामने आया जिसका किसी ने तसव्वुर भी नहीं किया था। वो शख्स जिसके सामने वो मदद मांगने आए थे वही उनका भाई यूसुफ था। भाई हैरान रह गए। उन्हें अपनी पुरानी गलती याद आ गई। वो वक्त याद आया जब उन्होंने हसद की वजह से अपने भाई को कुएं में डाल दिया था। अब उनके सामने वही भाई मौजूद था, लेकिन वो कमज़ोर और बेबस नहीं था, बल्कि अल्लाह ताला ने उसे इज्जत और मकाम अता कर दिया था। उन्होंने अपनी गलती को महसूस किया, लेकिन हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इंतकाम का रास्ता इख्तियार नहीं किया। उन्होंने फरमाया कि आज तुम पर कोई इल्ज़ाम नहीं, अल्लाह तुम्हें माफ़ फरमाए। ये हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के आला अखलाक और अजीम किरदार की मिसाल थी। नाजरीन, ज़रा गौर करें, एक इंसान जिसके साथ बचपन में जुल्म हुआ, जिसे अपनों ने छोड़ दिया, जिसने सालों तक जुदाई बर्दाश्त की, जब उसे बदला लेने का मौका मिला तो उसने माफ़ी का रास्ता इख्तियार किया। यही अंबिया के अखलाक होते हैं। इसके बाद हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को मिस्र बुलाने का इंतज़ाम किया। जब हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को मालूम हुआ कि उनका बेटा यूसुफ जिंदा है और अल्लाह ने उसे बड़ा मकाम अता फरमाया है, तो उनकी आंखों को सुकून मिला। सालों की जुदाई ख़त्म होने वाली थी, फिर वो अजीम मुलाकात हुई। एक बाप
جس نے برسوں اپنے بیٹے کی جدائی برداشت کی تھی، اپنے بیٹے سے دوبارہ ملا۔ وہ لمحہ محبت، خوشی اور اللہ کی رحمت سے بھرا ہوا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والدین اور خاندان کو عزت دی، اور وہ خواب بھی پورا ہوا جو حضرت یوسف علیہ السلام نے بچپن میں دیکھا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں وہ مقام عطا فرمایا جس کا وعدہ اس خواب میں تھا۔ ناظرین، قصہ یوسف علیہ السلام ہمیں بہت بڑے سبق دیتا ہے۔ یہ سکھاتا ہے کہ مشکل وقت میں صبر کرنا چاہیے۔ اللہ کی حکمت انسان کی سوچ سے بہت بڑی ہوتی ہے۔ پاکیزگی اور نیکی کا راستہ کبھی ضائع نہیں جاتا۔ معافی انسان کو بلند مقام عطا کرتی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی ہمیں بتاتی ہے کہ کبھی حالات کتنے ہی مشکل کیوں نہ ہوں، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے راستے پیدا کر دیتا ہے۔ کنواں بھی آیا، قید بھی آئی، آزمائشیں بھی آئیں، لیکن آخرکار اللہ نے عزت عطا فرمائی۔ یہ تھا قصہ یوسف علیہ السلام، ایک ایسی داستان جو صبر، ایمان، معافی اور اللہ کی رحمت کا عظیم سبق دیتی ہے۔ اللہ ہمیں قرآن کے واقعات سے سبق حاصل کرنے اور اپنی زندگی بہتر بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔